The mind is a battlefield, and every thought is a soldier. Win the war within, and the world outside bends to your command. A young man wandered through the village streets, weighed down by frustration, disappointment, and the endless echo of his own failures. Every attempt to achieve something meaningful had ended in heartbreak. Every dream that once shone brightly now felt distant, like stars just beyond reach. He watched others succeed, neighbors, friends, even strangers passing through the village, seizing opportunities, building lives of impact, while he remained trapped in hesitation, doubt, and fear. The laughter of children, the chatter of villagers, the busy hum of the market, everything reminded him. जहन एक मैदान जंग है और हर ख्याल एक सिपाही। अगर तुम अपने अंदर की जंग जीत लो तो बाहर की दुनिया तुम्हारे इशारे पर झुक जाती है। एक नौजवान गांव की गलियों में भटक रहा था, मायूसी, नाकामी और अपनी ही शिकस्तों की ना खत्म होने वाली गूंज के बोझ तले दबा हुआ। कोई भी कोशिश जो उसने किसी बामानी मकसद के लिए की थी, आखिरकार दिल टूटने पर ख़त्म हुई। हर वो ख्वाब जो कभी रोशन था अब दूर लगता था, जैसे सितारे जो बस हाथ की पहुंच से बाहर हो। वो दूसरों को कामयाब होते देखता था, पड़ोसी, दोस्त, हत्ता के गांव से गुजरने वाले अजनबी भी जो मौके से फ़ायदा उठा रहे थे, असर रखने वाली ज़िंदगियां बना रहे थे, जबकि वो खुद हिचकिचाहट, शक और खौफ में कैद रह गया था। बच्चों की हंसी, देहातियों की बातें, बाजार की मसरूफ गूंज, हर चीज़ उसे उसके माजी की याद दिलाती थी। Everything reminded him of how far behind he felt. Each day brought hope, but each night left him hollow and questioning his worth. In his restless wandering, he remembered stories of an old wise man who lived atop the hill at the edge of the village. People spoke of him in whispers and awe, describing how he had unlocked the secrets of the mind, mastered fear, and found peace and clarity that few could imagine. Legends claimed that those who sought his guidance emerged transformed, no longer prisoners of their doubts or circumstances. Driven by a combination of desperation and hope, the young man resolved to climb the hill, हर चीज़ उसे ये एहसास दिलाती थी कि वो कितना पीछे रह गया है। हर दिन उम्मीद लेकर आता, मगर हर रात उसे खाली, बेचैन और अपनी कदर पर सवाल उठाता छोड़ देती। अपनी बेकरारी में भटकते हुए उसे एक बूढ़े दाना की कहानियाँ याद आई, जो गांव के किनारे एक पहाड़ी की चोटी पर रहता था। लोग उसका जिक्र सरगोशियों और अकीदत से करते थे। कहते थे कि उसने जहन के राज पाल लिए हैं, खौफ पर काबू पा लिया है और ऐसी सुकून और वजाहत हासिल की है जिसका तसव्वुर बहुत कम लोग कर सकते हैं। कहा जाता था कि जो भी उसकी रहनुमाई की तलाश में जाता वो बदला हुआ वापस आता, अपने शकूक और हालात का कैदी नहीं रहता। ना उम्मीदी और उम्मीद के मिले जुले जज्बे से मजबूर होकर उस नौजवान ने पहाड़ी चढ़ने का फैसला किया। The young man resolved to climb the hill, believing that perhaps the answers he sought lay waiting there. The path to the summit was treacherous. Stones jutted out from the earth like broken teeth, roots twisted beneath his feet, and the incline tested both strength and patience. The sun beat down relentlessly, sweat soaking his clothes and stinging his eyes. Every step seemed heavier than the last, and yet he pressed on, propelled by an urgency he could not ignore. Birds soared overhead, their effortless flight reminding him of the freedom he longed for. The wind whispered through the trees, brushing against his face like encouragement, as if nature itself conspired to guide him forward. After hours of climbing, he finally reached the summit. There, under the shade of a sprawling ancient tree whose roots delved deep into the earth and whose branches reached toward the heavens, नौजवान ने पहाड़ी चढ़ने का पुख्ता इरादा कर लिया, ये यकीन रखते हुए कि शायद
जिन जवाबों की वो तलाश में है वहीं उसका इंतजार कर रहे हों। चोटी तक जाने वाला रास्ता खतरनाक था। पत्थर जमीन से टूटे हुए दांतों की तरह बाहर निकले हुए थे। जड़ें उसके कदमों तले बल खा रही थी और चढ़ाई उसकी ताकत और सब्र दोनों का इम्तिहान ले रही थी। सूरज बेरहमी से तप रहा था, पसीना उसके कपड़ों को भिगो रहा था और आंखों में चुभ रहा था। हर कदम पिछले से ज्यादा भारी महसूस होता, मगर फिर भी वो आगे बढ़ता रहा, एक ऐसी बेकरारी के तहत जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ऊपर परिंदे उड़ रहे थे, उसके बेतकल्लुफ परवाज उसे उस आजादी की याद दिला रही थी जिसकी वो आरजू रखता था। हवा दरख्तों में सरगोशियां कर रही थी, उसके चेहरे को छूती हुई जैसे हौसला अफजाई हो, गोया खुद फितरत उसे आगे बढ़ने की रहनुमाई कर रही हो। कई घंटों की चढ़ाई के बाद आखिरकार वो चोटी पर पहुंच गया। वहां एक फैले हुए कदीम दरख्त के साए तले, जिसकी जड़ें जमीन की गहराइयों में उतरी हुई थीं और जिसकी शाखें आसमान की तरफ फैली हुई थीं, नौजवान Sat बैठ the गया। old man. His presence radiated serenity and strength, as if he were a part of the hill itself. The old man's eyes held centuries of calm wisdom, seeming to peer directly into the young man's restless mind. Without a word, the young man seated himself, hoping the silence could bridge the gap between confusion and clarity. The old man gestured toward the river flowing far below, its waters moving tirelessly, curving around obstacles, carving a path through stone with patient determination. He explained that the river mirrored the mind. When clouded by doubt, fear, or distraction, it stagnates. But when guided with clarity and purpose, वो बूढ़ा आदमी था। उसकी मौजूदगी से सुकून और ताकत झलक रही थी, जैसे वो खुद उसी पहाड़ी का हिस्सा हो। उसकी आंखों में सदियों की ठहरी हुई दानाई थी, गोया वो सीधा नौजवान की बेचैन जहन में झांक रहा हो। बगैर कुछ कहे नौजवान उसके पास बैठ गया, इस उम्मीद के साथ कि शायद खामोशी ही उलझन और वजाहत के दरमियान पुल बन जाए। बूढ़े ने नीचे दूर बहती हुई दरिया की तरफ इशारा किया। उसका पानी थके बगैर बहता, रुकावटों के गिर्द मुड़ता, सब्र और इस्तकलाल के साथ पत्थर को चीरते हुए अपने रास्ता बनाता जा रहा था। उसने बताया कि ये दरिया जहन की मानिद है। जब शक, खौफ या तवज्जो की कमी उसे धुंधला देती है तो वो ठहर जाता है, लेकिन जब उसे वजाहत और मकसद के साथ रहनुमाई मिले तो वो चलता रहता है। it flows with unstoppable force, capable of shaping the world itself. The young man stared at the water, realizing how often his own mind had been stagnant, blocked by worry, hesitation, and fear. He felt as though the river was showing him the potential of his own untapped mind, if only he could learn to guide it. The first lesson emerged from the quiet, the power of thought. Every action, every choice, every success begins in the mind. A scattered mind produces scattered results. A focused mind produces unstoppable momentum. The young man reflected on the countless times he had let negativity and doubt dominate his thinking, wasting energy on fear and indecision. He realized that to change his life, he needed first to change his inner world. लेकिन जब उसे वजाहत और मकसद के साथ रहनुमाई दी जाए तो वो नाकाबिले रोक ताकत के साथ बहने लगता है और यहाँ तक कि दुनिया को भी शक्ल देने की सलाहियत रखता है। नौजवान पानी को गौर से देखता रहा और उसे एहसास हुआ कि उसका अपना जहन भी कितनी बार ठहराव का शिकार रहा है। फिक्रों, हिचकिचाहट और खौफ की वजह से रुका हुआ। उसे यूं महसूस हुआ जैसे दरिया उसे उसके अपने जहन की छुपी हुई सलाहियत दिखा रहा हो। अगर वो उसे सही सिमत में ले जाना सीख ले। खामोशी से पहला सबक उभरा, सोच की ताकत, हर अमल, हर फैसला और हर कामयाबी की शुरुआत जहन से होती है। बिखरा हुआ जहन बिखरे हुए नताइज पैदा करता है, जबकि मरकूज जहन नाकाबिले रोक रफ्तार पैदा करता है। नौजवान ने इन बेशुमार लम्हों पर गौर किया जब उसने मनफी ख्यालात और शक को अपनी सोच पर हावी होने दिया और खौफ और तजब्जुब में अपनी तवानाई ज़ाया की। उसे एहसास हुआ कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले उसे अपनी अंदरूनी दुनिया बदलनी होगी। To cultivate clarity, focus, and purpose in every thought. The second lesson was emotional mastery. Emotions, the old man explained, are like wild horses, beautiful,
powerful and dangerous if left uncontrolled. Anger, fear, and envy can derail even the most capable person, leading to mistakes, missed opportunities, and regrets. The young man thought of the moments in his own life when frustration had caused him to give up, when fear had frozen him in place, when envy had poisoned his confidence. He began to understand that mastery of emotion was not denial, but direction, learning to channel powerful feelings toward meaningful action rather than letting them destroy him. हर ख्याल में वजाहत, यकसुई और मकसद पैदा करना। दूसरा सबक जज्बात पर काबू पाना था। बूढ़े शख्स ने समझाया कि जज्बात जंगली घोड़ों की मानिंद होते हैं, खूबसूरत, ताकतवर, मगर अगर काबू में ना हो तो खतरनाक। गुस्सा, खौफ और हसद हत्ता के सबसे काबिल इंसान को भी पटड़ी से उतार सकते हैं, जिसके नतीजे में गलतियां, ज़ाया होते मौके और पछतावे जन्म लेते हैं। नौजवान ने अपनी ज़िंदगी के उन लम्हों के बारे में सोचा जब मायूसी ने उसे हार मानने पर मजबूर किया, जब खौफ ने उसे वहीं मुंजमद कर दिया और जब हसद ने उसके एतमाद को ज़ेर आलूद कर दिया। उसे ये समझ आने लगी कि जज्बात पर काबू पाना इनकार नहीं बल्कि रहनुमाई है। ताकतवर एहसासात को बामकसद अमल की तरफ मोड़ना बजाय उसके कि उन्हें खुद को तबाह करने दिया जाए। Third principle was self-discipline. Success, the old man said, is not a fleeting event, but the cumulative effect of small, consistent actions. Discipline is the silent architect of greatness. The old man explained that the difference between ordinary people and those who leave legacies is not talent or luck, but daily dedication. Early mornings, repeated effort, commitment even when the results are invisible. These are the foundations of extraordinary achievement. The young man realized how often he had allowed laziness, distraction, and fleeting comfort to guide his life. Discipline, he understood, was not a punishment. It was the key to freedom, a path to shape his own destiny. Next came the lesson of association. The old man pointed to the trees swaying together in the wind, to the birds flying in formation, and explained that the mind absorbs the energy of its surroundings. तीसरा असूल खुद नज़्म ज़ब्त का पाबंद होना है। बूढ़े आदमी ने कहा कि कामयाबी कोई आर्जी वाक़या नहीं होती, बल्कि छोटे मुसलसल अमाल का मजमूई नतीजा होती है। नज़्म ज़ब्त अज़मत का खामोश मामार है। उसने वजाहत की कि आम लोगों और वो अफराद जो तारीख़ में अपनी मीरास छोड़ जाते हैं, उनके दरमियान फ़र्क ना तो सलाहियत का होता है और ना ही किस्मत का, बल्कि रोज़ाना की लगन का होता है। सुबह सवेरे उठना, बार बार मेहनत करना, नताइज नज़र न आने के बावजूद साबित कदम रहना, यही गैर मामूली कामयाबी की बुनियादें हैं। नौजवान ने महसूस किया कि वो कितनी बार सुस्ती, तवज्जो की कमी और वक्ती आराम को अपनी ज़िंदगी की रहनुमाई करने देता रहा है। उसने समझ लिया कि नज़्म ज़ब्त कोई सज़ा नहीं बल्कि आज़ादी की कुंजी है, अपनी तकदीर को खुद तराशने का रास्ता है। इसके बाद सोहबत का सबक आया। बूढ़े आदमी ने हवा में एक साथ झूमते दरख्तों और कतार में उड़ते परिंदों की तरफ इशारा किया और बताया कि जहन अपने माहौल की तवानाई को जज्ब कर लेता है। Negativity, idleness, and doubt are contagious, and so are ambition, wisdom, and courage. The young man reflected on his circle of friends, the voices he allowed into his mind, and the habits he had unconsciously picked up. Transformation, he realized, required not only internal change, but also conscious curation of his environment, choosing influences that lifted him up rather than dragging him down. Persistence in the face of failure followed. The old man shared stories of inventors, explorers, and visionaries who had failed repeatedly, only to succeed because they refused to surrender. Failure is not an end. It is a teacher, a stepping stone, a spark for growth. The young man felt a shiver of recognition. Fear of failure had kept him from taking risks, from stepping into opportunities.
मनफी सोच, सुस्ती और शक मुतद्दी होते हैं और इसी तरह बुलंद हौसला, दानाई और जुर्रत भी। नौजवान ने अपने दोस्तों के दायरे पर गौर किया, उन आवाज़ों पर जो अपने जहन में दाखिल होने देता था और उन आदतों पर जो वो लाशऊरी तौर पर अपना चुका था। उसे एहसास हुआ कि तब्दीली के लिए सिर्फ अंदरूनी इस्लाह काफ़ी नहीं, बल्कि अपने माहौल का शऊरी इंतखाब भी ज़रूरी है। ऐसे असरात चुनना जो इसे ऊपर उठाएं, ना कि नीचे गिरा दें। उसके बाद नाकामी के सामने साबित कदमी का सबक आया। बूढ़े आदमी ने मौजों, मुहिम जोओं और दूर अंदेशों लोगों की कहानियां सुनाई जो बार बार नाकाम हुए, मगर आखिरकार इसलिए कामयाब हुए कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। नाकामी इख्तिताम नहीं होती, ये एक उस्ताद है, एक सीढ़ी है, तरक्की के लिए एक चिंगारी है। नौजवान के दिल में पहचान की एक लहर दौड़ गई। नाकामी के खौफ ने उसे खतरा मोल लेने से रोके रखा था, मौके में कदम रखने से बाज रखा था। From pursuing his dreams fully. Courage, he realized, was not the absence of fear, but the decision to act despite it. Finally, the old man spoke of purpose. Achievement without meaning is hollow. Wealth without impact is empty. Fame without peace is shallow. True success arises when the mind, heart, and actions align with a purpose greater than oneself. The young man closed his eyes and visualized a life of significance, where each effort mattered, each challenge was a lesson, and each day contributed to a vision bigger than himself. The clarity he felt was intoxicating, a fire igniting within him that burned away hesitation and doubt. As the sun began to sink behind the hill, अपने ख्वाबों के ताकुब से रुक जाने की वजह से वो समझ चुका था, जुर्रत, उसने जाना, खौफ की अदम मौजूदगी का नाम नहीं, बल्कि खौफ के बावजूद अमल करने का फैसला है। आखिर में बूढ़े आदमी ने मकसद की बात की। उसने कहा कि मायने के बगैर कामयाबी खोखली होती है, असर के बगैर दौलत बेरूह होती है, सुकून के बगैर शोहरत सतही होती है। हकीकी कामयाबी तब जन्म लेती है जब जहन, दिल और अमल किसी ऐसे मकसद के साथ हम आहंग हो जाएं जो इंसान की ज़ात से बड़ा हो। नौजवान ने आंखें बंद की और एक बामकसद ज़िंदगी का तसव्वुर किया। ऐसी ज़िंदगी जहां हर कोशिश मायने रखती हो, हर चैलेंज एक सबक हो और हर दिन एक ऐसे विजन में हिस्सा डाल रहा हो जो उसकी ज़ात से कहीं बड़ा हो। जो वजाहत उसने महसूस की वो नशा आवर थी, जैसे उसके अंदर एक आग जल उठी हो जो हिचकिचाहट और शक को जलाकर राख कर रही हो। उसी लम्हे जब सूरज पहाड़ी के पीछे डूबने लगा, painting the sky with streaks of gold and crimson, the young man stood. The storm of fear and frustration that had haunted him for years was gone, replaced by calm determination and unshakable clarity. The old man watched silently, knowing the seeds of transformation had been planted. The young man descended the hill, not as a man defeated by life, but as one beginning to master the most powerful force in existence, his own mind. In the days and weeks that followed, he applied the 6 rules with unwavering commitment. He monitored his thoughts, mastering focus and clarity. He learned to channel emotions. सुनहरी और सुर्खी माइल रंगों की लकीरों से आसमानों को रंगते हुए नौजवान खड़ा हुआ। खौफ और झुंझलाहट का वो तूफान जो बरसों से उसका पीछा कर रहा था अब खत्म हो चुका था और उसकी जगह पुरसुकून, अज़्म और नाकाबिले मुल्तज़लज़ल वजाहत ने ले ली थी। बूढ़ा आदमी खामोशी से उसे देख रहा था, ये जानते हुए कि तब्दीली के बीज बो दिए गए हैं। नौजवान पहाड़ी से नीचे उतरा, जिंदगी से शिकस्त खुर्दा इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसे शख्स के तौर पर जो कायनात की सबसे ताकतवर कुव्वत अपने ही जहन पर काबू पाना शुरू कर चुका था। आने वाले दिनों और हफ्तों में उसने 6 असूलों को गैर मुतलजल अज़म के साथ अपनाया। उसने अपने ख्यालात पर नजर रखनी शुरू की, तवज्जो और वजाहत पर महारत हासिल की। He learned to channel emotions into energy and purpose. He disciplined himself with daily routines and consistent effort. He surrounded himself with people who inspired growth.
He faced failure with courage, learning from each setback, and he aligned every action with his higher purpose. Slowly, the world around him began to reflect the change within him. Opportunities he had once overlooked now appeared clearly, and challenges became stepping stones rather than obstacles. The transformation was profound, not because life had become easier, but because he had become stronger, clearer, and more resilient. Master your mind, and you unlock a life of extraordinary potential. Every thought, every emotion, every action is a brushstroke in the masterpiece of your life. The greatest victories are not won in the world outside, but in the silent battles fought within. Control your thoughts, harness your emotions, pursue your purpose relentlessly. If you are ready to awaken your mind, embrace these truths, and create a life that inspires, subscribe now and join this journey where wisdom meets action and ordinary lives transform into legacies of greatness. उसने सीख लिया कि जज्बात को तवानाई और मकसद में कैसे ढाला जाए। उसने रोज़मर्रा के मामूलात और मुसलसल मेहनत के ज़रिए खुद को नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाया। उसने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखा जो तरक्की और बेहतरी की तरगीब देते थे। उसने नाकामी का सामना जुर्रत के साथ किया और हर ठोकर से सबक सीखा। उसने अपने हर अमल को अपने आला मकसद के साथ हम आहंग कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर की तब्दीली का अक्स उसके इर्द गिर्द की दुनिया में नजर आने लगा। वो मौके जो कभी उसकी नज़रों से ओझल रहते थे अब वाजिया दिखाई देने लगे और चैलेंजेस रुकावटों की बजाय कामयाबी की सीढ़ियां बन गए। ये तब्दीली गहरी थी, इसलिए नहीं कि ज़िंदगी आसान हो गई थी, बल्कि इसलिए कि वो खुद ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा वाजिया सोच रखने वाला और ज़्यादा साबित कदम बन चुका था। अपने जहन पर काबू पाओ और तुम गैर मामूली सलाहियतों से भरी जिंदगी का दरवाज़ा खोल दोगे। हर ख्याल, हर जज्बा, हर अमल तुम्हारी जिंदगी के शाहकार में एक बुरश स्ट्रोक होगा। सबसे बड़ी फतूहात बैरूनी दुनिया में नहीं बल्कि उन खामोश जंगों में जीती जाती हैं जो इंसान अपने अंदर लड़ता है। अपने ख्यालात को काबू में रखो, अपने जज्बात को दुरुस्त सिमत दो और अपने मकसद को बेदरेक ताकुब करो। अगर तुम अपने जहन को बेदार करने, इन सच्चाइयों को अपनाने और एक ऐसी ज़िंदगी तख्लीक करने के लिए तैयार हो जाओ जो दूसरों को मुतासिर करे, तो अभी से अज़्म करो और पक्का इरादा करो कि हमने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, ताकि तुम्हारा जहन भी तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोचने के लिए मजबूर हो जाए।